Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the classification, nomenclature, and the structure of the amines. But first of all, we will see about the definition of the amines. What are amines? Amines can be defined in two different ways. In one way, we can say the amines are the derivative of ammonia. In other way, we can say the amines are formed by replacing the H atom from any of the hydrocarbons by the NH2 group. So according to the first definition, the species which are formed by the replacement of one or more H atoms of alkane by the NH2 group are called amines, or the species which are formed by the replacement of one or more H atom of cycloalkane by NH2 group are called amines. आप इन्हें भी amines कहेंगे. Or the species which are formed by the replacement of one or more H atoms of benzene, they are also called as amines. Or the species which are formed by the replacement of one or more H atom from the side chain present on the benzene ring are also called as amines. जैसे फर्स्ट केस में जो आपके एमीन्स जो आपके बने वहां पे आपने क्या किया कि आपने एक H को रिप्लेस किया आपके एल्केन्स के अंदर से और आपने NH2 ग्रुप वहां पे लगा दिया. इन द नेक्स्ट साइक्लोएल्केन यू रिप्लेस द वन ऑफ द H atom by the NH2 group, while in the third example you replace one of the H atom from the benzene ring by the NH2 group. In the fourth case, you replace the H atom from the side chain which is attached to the benzene ring by the NH2 group. All such type of compound called as the amines. Or you can replace the carbon atom, or you can replace the carbon atom from the alicyclic ring or from the benzene ring by the nitrogen atom. In the first case, you have replaced the carbon atom of the alicyclic ring by the nitrogen atom. We obtain a cyclic amine, and that amine is a piperidine. इस एमीन का नाम भी क्या है? पिपरिडिन है यहाँ पे. नेक्स्ट जो बेंजीन के जो 6 कार्बन होते हैं, अब 6 कार्बन में से आपने किसी एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया बाय द नाइट्रोजन एटम एंड वी गॉट ए साइक्लिक एमीन. नाउ इट इज कॉल्ड पिरिडिन. आप इसे क्या कहते हैं? पिरिडिन कहते हैं. तो इस टाइप से आपने देखा दिस ऑल आर कॉल्ड एमीन्स और आर कॉल्ड एमीन्स. तो व्हाट आर एमीन्स? द स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ one or more H atom of alkane or the cycloalkane or the benzene or the side chain of benzene by the amino group, or you can simply replace the carbon atom of the alicyclic ring or the aromatic ring by the nitrogen atom. All such compound called as the amines. Amines can also be defined in another way. As we already told you, the amines are nothing but they are the derivative of ammonia. Derivative of ammonia means which are obtained from ammonia by replacing one or more H atom of the ammonia. जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर आपके सामने नाइट्रोजन के ऊपर आपके 3H आपको दिख रहे हैं, एक लोन पेयर है. अगर हम एक H, 2H या 3H को रिप्लेस कर दें, क्या करते हैं हम उनको रिप्लेस, और वहां पे हम क्या लगा दें? कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें, साइक्लोएल्काइल ग्रुप लगा दें, बेंजीन रिंग लगा दें, या हम इस टाइप से इनको H को हटाएं कि हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बने और साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाइट्रोजन भी एक पार्ट बन जाए. ऑल सच कंपाउंड कॉल्ड एज द एमीन्स. अब हम वन बाय वन देखते हैं कि द स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम ऑफ अमोनिया बाय किससे रिप्लेस करें? पॉइंट नंबर 1, बाय एल्काइल ग्रुप. आप इस आपने अब की बार देखा हमने H को रिप्लेस कर दिया अमोनिया का और वहां पे क्या लगा दिया? CH3 ग्रुप, दैट इज द मिथाइल ग्रुप, मींस एल्काइल ग्रुप आपने लगा दिया. द नेक्स्ट केस यू कैन रिप्लेस द वन ऑफ द H एटम बाय द साइक्लोएल्काइल ग्रुप. वो साइक्लोएल्काइल आपका जैसे यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है, इट में भी साइक्लोब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, वो कोई भी हो सकता है. और यू कैन रिप्लेस द वन और मोर H एटम of the ammonia by the benzene ring, means phenyl group है आपका, आप phenyl group से इसको रिप्लेस कर सकते हैं. और ये आपका एराइल भी हो सकता है. if that particular benzene ring is the substituted benzene ring को अगर आप यहाँ पे अटैच कर दें तो आप उसे एराइल भी कहते हैं. क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं एराइल और फिनाइल में डिफरेंस क्या है, आगे भी बताएंगे हम आपको चल के. अगर हम इसको रिप्लेस किससे कर दें? बाय द साइड चेन ऑफ द एराइल ग्रुप, यानी जो अटैचमेंट हो आपकी, जो H हटे नाइट्रोजन के ऊपर से H हट के जब अटैचमेंट होगी तो किसके थ्रू हो? थ्रू द साइड चेन विच इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के ऊपर जो साइड चेन है उस साइड चेन के थ्रू ही नाइट्रोजन से अटैचमेंट हो. तो ऐसा भी हो सकता है. ऑल सच कंपाउंड कॉल्ड एज द एमीन्स. लेकिन इस दौरान आपने देखा इन नन ऑफ द केस द नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ द रिंग.
जो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है जिसमें हमने रिंग स्ट्रक्चर भी ली है, वो रिंग में सिर्फ कार्बन एटम ही है। सेकंड एग्जांपल में देखिए जहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल हमने लिया, उस साइक्लोप्रोपाइल में हर जगह कौन है, एवरीवेयर देयर इज ए कार्बन, रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन है। आप बेंजीन रिंग में देखें, आपको पता है हर जगह सिर्फ कार्बन ही होते हैं। जहाँ पे आपने बेंजाइल ग्रुप लगाया, देखो ये बेंजीन के ऊपर जो CH2 ग्रुप लगा होता है, अब इसे क्या कहते हैं, दैट होल कोल्ड बेंजाइल ग्रुप, दैट होल कोल्ड बेंजाइल ग्रुप। इसके अंदर भी आपने देखा नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से बाहर है, वो रिंग से बाहर है, वो रिंग का पार्ट नहीं है। तो लेकिन अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं जब हम इस टाइप से रिप्लेस करें, इस टाइप से रिप्लेसमेंट करें अमोनिया के H को, के द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिंग, ताकि वो साइक्लिक एमीन बन जाए, ताकि वो कौन बन जाए, आपके साइक्लिक एमीन। जैसे इस एग्जांपल के अंदर आप देखें, बोलो ये कैसे बना होगा अमोनिया, आप बनी हुई स्ट्रक्चर को देखें, इसमें आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी एक H प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी, दैट इज द पिप्रिडिन, ये पिप्रिडिन की स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसमें अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर एक H आपको दिख रहा है, इट मींस 2H आर रिप्लेस्ड, 2H को रिप्लेस किया और इस टाइप से रिप्लेस किया कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। देखो यहाँ पे ये एक H, देखो यहाँ से मैंने रेड कलर से लिखा दिया, दूसरा H यहाँ पे था, हटा दिया, और यहाँ पे बोलो किससे रिप्लेसमेंट की, बोलो देखो एक कार्बन से, इस टाइप से कि वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना दी। तो देखो जितने भी हमने कार्बन एटम यूज किए, देखो कितने कार्बन एटम यूज किए, 1 2 3 4 5, और वो चेन की फॉर्म में आ गए। नाउ द नाइट्रोजन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रिंग, और स्ट्रक्चर बन गई पिप्रिडिन। क्या बन गई आपकी, ये पिप्रिडिन। नेक्स्ट एग्जांपल और आप देखें, यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी H नहीं है, जो इस कंपाउंड आपके सामने, इसे पिरिडिन कहते हैं आप। ये कौन है बोला आपका, पिरिडिन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन जो अटैच है यहाँ पे, इसके अंदर इस नाइट्रोजन के ऊपर, पिरिडिन के नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी H यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये बना कैसे हुआ, देखो ये कुछ ऐसे बना कि नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर, और ये तीनों H हटा दिए, देखो ये 1H, देखो यहाँ पे H नहीं है, ये सेकंड, और देखो पहले हमने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बना दी, देखो इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन के देखो 1 बॉन्ड, देखो ये सेकंड बॉन्ड, और जो थर्ड बॉन्ड और है, देखो एक H और 2 यहाँ पे था, उस H को भी हमने हटा दिया, और H को भी हमने रिंग का, इसका ऊपर भी हमने क्या किया, रिंग का पार्ट बना दिया। देखो यहाँ से, देखो इट नाउ बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिंग, देखो इस टाइप से। और भी अल्टरनेट हमने डबल सिंगल बॉन्ड लगा दिए, नाउ इट बिकम्स अ पिरिडिन। बोलो कौन बन गया, ये पिरिडिन। जो नाइट्रोजन के तीनों H हटाने से पिरिडिन बना है, नाइट्रोजन के 2 H हटाने से क्या बना था, पिप्रिडिन, और 2 H हटाएं तो बोलो क्या बना, पिप्रिडिन। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर से 2 H हटाए, 2 H हमने कैसे हटाए, इस टाइप से हटाए कि रिंग स्ट्रक्चर बन जाए, तो पिप्रिडिन है। नाइट्रोजन के तीनों H हटाएं और एक रिंग स्ट्रक्चर का पार्ट भी बने, नाइट्रोजन क्या है, रिंग स्ट्रक्चर का पार्ट भी हो, तो क्या बनी, पिरिडिन। तो डेफिनेशन बोलो आपकी क्या बनी, आपकी एमीन्स की, द स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ one or more H atom of ammonia by alkyl group or the cycloalkyl group or the aryl group or the side chain of the aryl group, and the nitrogen atom may or may not be the part of the ring. नाइट्रोजन एटम रिंग का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शुरू के जो हमने एग्जांपल दिए थे जिसमें साइक्लोप्रोपाइल रिंग हमने लगाया था H हटा के, उसके अंदर रिंग का पार्ट नहीं है नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमने बेंजीन रिंग लगाया, रिंग का पार्ट नहीं है। उसके बाद बेंजाइल ग्रुप लगाया, रिंग का पार्ट नहीं है नाइट्रोजन। लास्ट में जो 2 एग्जांपल हमने लिए, एक पिप्रिडिन और एक पिरिडिन, उन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो नाइट्रोजन है, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिंग। तो ऑल सच कंपाउंड कॉल्ड एज द एमीन्स। आप इन सभी कंपाउंड को क्या कहते हैं, एमीन्स। मींस एमीन्स आर नथिंग बट दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये जितने भी कंपाउंड हैं डेरिवेटिव हैं, ये डिराइव्ड हुए हैं, कहाँ से डिराइव हुए हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द अमोनिया। मींस द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एज एमीन्स। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें और ये पता लगाना चाहें कि नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर कैसे आए, तो आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बोलो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, और जो सेकंड शेल होती है, इन द सेकंड शेल देयर इज नो डी ऑर्बिटल, कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट डी ऑर्बिटल, देखो जो हम कॉन्फ़िगरेशन हमने ओपन फॉर्म में लिखी, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को आप हाफ एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपने हंस रूल के अकॉर्डिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। all the p orbitals of that p subshell are degenerate orbitals, सभी की एनर्जी बिल्कुल सेम है, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन जब फिलअप किए जाएंगे तो हंस रूल को फॉलो करते हुए हमने फिलअप किए 1 2 3, इसलिए 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड पेयर बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे
बॉन्ड भी कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो लोन पेयर यहाँ पे बच गई, ये आगे एक्साइट तो हो नहीं सकते, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी हेल्प से बनेगा तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बन सकता है, जो हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। फर्दर क्लासिफिकेशन, आपके एमीन्स जो है वो एलिफेटिक एमीन भी हो सकते हैं, जिन्हें आप एल्काइल एमीन भी कह सकते हैं। ये बने कैसे, जैसे अभी हमने बताया था, एमीन्स आर नथिंग बट दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव ही हैं। तो कैसे बनेंगे एलिफेटिक एमीन्स? अभी हमने जो सारी बातें पीछे डिस्कस की, उन्हीं को अब हम फर्दर बाइफरकेट्स कर रहे हैं इन डिफरेंट वेज। जैसे यहाँ पे ये कैसे बनेंगे एलिफेटिक एमीन्स, अगर इफ वी रिप्लेस वन और मोर ऑफ द एच एटम बाय द एल्काइल ग्रुप, अगर हम एक से ज्यादा एच हटा दे, एक हटा दे, दो हटा दे, तीन हटा दे, कितने भी एच हटा दे, तीनों एच हटा दे और वहां पे एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो आपके एलिफेटिक एमीन्स या एल्काइल एमीन्स कहलाएंगे। सो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द एलिफेटिक एमीन्स? द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर एच एटम ऑफ द अमोनिया बाय द एल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एज द एलिफेटिक एमीन्स, और द एसाइक्लिक एमीन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रुप हमने लगाया वो ग्रुप आपका साइक्लिक नहीं है, वो एसाइक्लिक था। CH3 इज नॉट एसाइक्लिक थिंग, इट इज एन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम ले लें साइक्लिक एमीन, तो हम कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैच कर दें, कोई भी एच हटा के, और साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैच कर देंगे हम यहाँ पे, वो साइक्लोप्रोपाइल भी हो सकता है, वो बेंजीन रिंग भी हो सकता है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई साइड चेन अटैच है उसके थ्रू भी अटैचमेंट हो सकती है। तो मींस द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर एच एटम of the ammonia by a cyclic group like the cyclopropyl group here, or it may be the benzene ring, or it may be the attachment through the आपका एलिफेटिक ग्रुप which is present on the benzene ring means through the side chain, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके नाइट्रोजन बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिंग। अब जो हमने अभी एग्जांपल आपके सामने लिखा, ये जो पिप्रिडिन का एग्जांपल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, वन और मोर एच एटम हमने हटाए, बोलो कितने एच हटाए, 2 एच एटम। अगर हमने 2 एच एटम हटाए, इस टाइप से हटाए, नाउ द साइक्लिक स्ट्रक्चर इज आल्सो फॉर्म्ड एंड नाइट्रोजन बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिंग। नाइट्रोजन यहाँ पे पार्ट ऑफ रिंग भी बन गया है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, बोलो यहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया था, इट इज पिप्रिडिन। बोलो ये कौन है आपका, ये पिप्रिडिन है। यहाँ पे बेंजीन रिंग, देखो ये आपके बेंजीन रिंग का एक आपका सी हटा, वहां पे एन लगा, तो आपके ये क्या है, ये भी आपका कौन है, इसका कंपाउंड का नाम पहले भी हमने बताया था, दैट इज द पिरिडिन। ये कैसे बना है, हमने पीछे भी आपको बताया था, हाउ इट इज फॉर्म्ड। इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। कितने एच हटाने के बाद बना, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द 3 एच एटम ऑफ द अमोनिया। जब हमने तीनों की तीनों एच हटा दिया आपके अमोनिया के, तब जाके ये कंपाउंड आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज द पिरिडिन। तो दीज आर द साइक्लिक एमीन्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एर एल्काइल एमीन। देखो एर एल्काइल नाम से पता चलता है, इसमें तो एर एर का मतलब एराइल ग्रुप, सेकंड आपका एल्काइल ग्रुप मींस आपके बेंजीन रिंग भी हो, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप भी अटैच होना चाहिए आपका, तो उसके थ्रू ही अटैचमेंट होगी। देखो जैसे हमने अमोनिया लिया, अमोनिया का क्या किया, देखो स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक एच हटाया, एच हटा के बेंजाइल ग्रुप लगा दिया। मींस इस जो ग्रुप हमने लगाया बेंजाइल ग्रुप, उसमें बेंजीन रिंग भी है, एराइल ग्रुप भी है, और इसके अंदर एलिफेटिक ग्रुप भी है। देखो जैसे आपका जो CH2 जो ग्रुप हमने लगा रखा है, तो ये कहलाते हैं एर एल्काइल एमीन्स। तो द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर एच एटम ऑफ अमोनिया बाय द साइड चेन, किसके थ्रू अटैचमेंट हो, थ्रू द साइड चेन ऑफ द एराइल ग्रुप, आर कॉल्ड एज द एर एल्काइल एमीन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो भी हमारे साइक्लिक एमीन्स थी उसकी फर्दर टाइप। साइक्लिक एमीन दो टाइप के हो सकते थे, मे बी द होमोसाइक्लिक एमीन और मे बी द हेटेरोसाइक्लिक एमीन। होमो मींस सेम, मींस द साइक्लिक स्ट्रक्चर contains the same type of atom, one type of atom means रिंग जो होगा उसके अंदर एक ही टाइप के एटम होंगे, एक टाइप के एटम होंगे तो वो आमतौर पे कार्बन एटम ही होते हैं, वो दूसरे नहीं हो सकते हैं। तो इट मींस जो होमोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन ही तो है जो मैक्सिमम कैटिनेशन दिखाता है, यू ऑल नो the maximum catenation shown by the element in the whole of the periodic table, that element is nothing but that element is कार्बन एटम। वो कार्बन एटम ही है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन दिखाता है। कार्बन के जो कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जो स्केलेटन होता है, जो बैकबोन होती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो कोई और नहीं, वो कार्बन एटम ही होता है। तो इट मीन जब कभी भी कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे आप होमोसाइक्लिक कहते हैं, मींस एक टाइप के एटम होंगे, तो वो कोई और नहीं होंगे, वो सिर्फ एक ही वो होंगे, सिर्फ कार्बन एटम। तो वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी वो सिर्फ कार्बन एटम की ही होगी। इट मींस जो होमोसाइक्लिक एमीन्स हैं इनके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होगी, लेकिन वो सिर्फ कार्बन एटम की होगी। और एमीन्स भी हैं ये, इसीलिए कोई ग्रुप जो लगा हुआ होगा, चाहे वो NH2 की फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो वो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच हो सकता है। तो जैसे अभी आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे,
कि the compounds which are formed by the replacement of one or more H atom of the ammonia by the cycloalkane के द्वारा देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई, लेकिन इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो नाइट्रोजन नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन एटम है। और द बेंजीन रिंग देखो, बेंजीन रिंग के अंदर सिर्फ क्या है, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग, तो मींस ये होमोसाइक्लिक रिंग है। नेक्स्ट साइड चेन के थ्रू जब हमने अटैचमेंट कर दिया तो भी आपके बेंजीन रिंग तो बेंजीन ही रहा, उसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम ही, मींस होमोसाइक्लिक रिंग ही है यहाँ पे भी। इन ऑल द थ्री स्ट्रक्चर वी हैव द रिंग स्ट्रक्चर, we have the ring structure that is directly or indirectly attached with the nitrogen atom by the replacement of the H atom present on the ammonia। अमोनिया के ऊपर जो H atom present है, उन H को रिप्लेस करने के बाद जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने अटैच की है, डायरेक्टली या तो डायरेक्टली बिल्कुल सीधे उस रिंग के कार्बन के थ्रू, या इनडायरेक्टली या उस रिंग के ऊपर जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप था उसका H हटा के उसके थ्रू अटैच की हो। लेकिन जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक ही टाइप के एटम, वो सिर्फ कार्बन होंगे। वो कौन होंगे? कार्बन। तो ये सारे कहलाए आपके होमोसाइक्लिक एमीन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हीट्रोसाइक्लिक। जैसे नाम से पता चला, हीट्रो का मतलब नॉट सेम, इज डिफरेंट, मतलब जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक से ज्यादा तरह के एटम, तो कार्बन तो होगा ही, हमने बताया ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी उसके अंदर जो बैकबोन जो स्केलेटन है वो तो कार्बन एटम की होती है। लेकिन जो रिंग स्ट्रक्चर है हमारी, जैसे अभी आपने ऊपर देखा साइक्लोप्रोपाइल हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, इस पूरी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन है। अगर हम किसी कार्बन को हटा के वहां पे नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करवा दे किसी तरीके से, तो वो जो रिंग है अब होमोसाइक्लिक नहीं, वो हीट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। जरूरी नहीं वो नाइट्रोजन हो, हीट्रो मीन्स डिफरेंट हो, कोई भी दूसरा एटम हो, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अबाउट ओनली अबाउट द एमीन्स, तो हम नाइट्रोजन की बात करेंगे कि जो हीट्रो एटम होगा, कार्बन को छोड़ के जो अलग एटम भी होगा, जो रिंग का पार्ट बनने वाला है, वो कौन होगा? वो नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन कोई भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है। आमतौर पे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड ही हम स्टडी करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या बनी, द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ टू और मोर H एटम ऑफ द अमोनिया बाय किसके द्वारा? एलिसाइक्लिक ग्रुप इन सच ए वे दैट द नाइट्रोजन बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिंग, और द बेंजीन रिंग और द एराइल ग्रुप, and in such a way that the nitrogen becomes the part of the ring। तो इन स्ट्रक्चर्स के नाम भी आप जानते हैं, हमने पीछे भी आपको रिपीट किया था, इसलिए बार बार लिख देते हैं क्योंकि इनके बेस के ऊपर कुछ आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आने होते हैं आगे, ताकि ये नाम आपको बिल्कुल याद ही हो जाए। तो पहले वाले का नाम पिप्रिडिन, और ये जो लिखा जो बेंजीन रिंग के अंदर से कार्बन की रिप्लेसमेंट करके एक एन लगा देते हैं, तो ये कौन हुआ? ये आपका पिरिडिन है। तो ये आपके देखा कि साइक्लिक एमीन दो टाइप के हैं, होमोसाइक्लिक और द हीट्रोसाइक्लिक एमीन्स। अब ये होमोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक एमीन भी फर्दर आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो वन बाय वन अब हम देखेंगे। तो टाइप ऑफ द होमोसाइक्लिक, फिर हीट्रोसाइक्लिक की भी टाइप देखेंगे, दोनों की टाइप एक ही जैसी होंगी। अभी वो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, उन्हीं के बेसिस होगी। तो वो आपके एलिसाइक्लिक एमीन हो सकते हैं, एरोमेटिक एमीन। अगर आप इसको मोर करेक्टली पूरा नाम बोलना चाहें टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक एमीन का, तो आप सिंपली इसको पूरा नाम बोले तो कैसे बोल सकते हैं? एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक एमीन्स। लेकिन इतना लंबा नाम बोलने की वजह हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं, एलिसाइक्लिक एमीन्स। तो एलिसाइक्लिक एमीन कौन होंगे? द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम ऑफ द अमोनिया बाय साइक्लोएल्केन। आपके जो साइक्लोएल्काइल ग्रुप है उसके थ्रू आप अटैच करेंगे, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक एमीन्स कह देंगे। दूसरी टाइप आपकी हो सकती है एरोमेटिक एमीन्स। दूसरी कौन हो सकती है बोलो? एरोमेटिक एमीन, या आप इन्हें कह सकते हैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक एमीन्स। इसमें क्या होगा? द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम ऑफ द अमोनिया बाय बेंजीन रिंग, बाय फिनाइल ग्रुप, बाय एराइल ग्रुप, आप कुछ भी यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे। तो आप उन्हें या थ्रू द साइड चेन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग और कॉल्ड एज द एरोमेटिक एमीन्स, आप इन्हें एरोमेटिक एमीन्स कह सकते हैं। एरोमेटिक इसलिए कहा क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग के अंदर वो दोनों बातें जो कल रूल ने बताई थी, दोनों बातें क्या है कि एक तो इसके अंदर 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n प्लस 2 पाई के अंदर अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 6 आता है। इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बेंजीन रिंग में आपको 3 पाई बॉन्ड दिख ही रहे हैं, वो हम पहले ही डिटेल में आपको बताया जा चुका है। दूसरी साइक्लिक कंजुगेशन, मतलब जो कंजुगेशन है इसमें ऑल्टरनेटिवली जो प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, वो रिंग के अंदर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन पूरी है, और जिस भी किसी भी कंपाउंड के अंदर ये दो कंडीशन आपको पूरी दिख जाए, क्या क्या? पहली चीज हकल रूल के अनुसार कि उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरा साइक्लिक कंजुगेशन मींस ऑल डबल बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली इन द रिंग, रिंग के अंदर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो। ये पहला तरीका होता है साइक्लिक कंजुगेशन देखने का, जो हमारे लिए यहाँ पे फिलहाल सफिशिएंट है। आगे और एग्जांपल आएंगे तो उसका दूसरा तरीका भी बताएंगे साइक्लिक कंजुगेशन देखने का, और दूसरा तरीका और क्या हो सकता है।
जो वैसे हम पहले ही बेंजीन रिंग वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसके दौरान आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक एमीन। सिमिलरली लाइक दैट ऑफ द होमोसाइक्लिक एमीन्स, द हेटेरोसाइक्लिक एमीन्स मे बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स, द एलिसाइक्लिक और द एरोमेटिक। जैसे मैंने बताया, अगर आपको पूरा नाम बोलना हो, होमोसाइक्लिक में हमने बताया था, तो आप एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक एमीन कहेंगे और दूसरी टाइप को एरोमेटिक होमोसाइक्लिक एमीन कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप बनेगी वही एलिसाइक्लिक, तो इसको क्या कह सकते हैं, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक एमीन। तो एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक एमीन्स कौन सी होंगी, नाम से पता चल रहा है कि हेटेरोसाइक्लिक मतलब आपके जो रिंग स्ट्रक्चर है उसका पार्ट बोलो कौन बनेगा, आपका कोई ना कोई हेटेरो एटम होना ही चाहिए। सो द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ टू और मोर H atom of the ammonia by the alicyclic group and the nitrogen becomes a part of the ring। जैसे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है, फिर से देखो इसका वही नाम, क्या नाम था बोलो, इसका पिप्रिडीन ये बन गया। यहाँ पे बोलो क्या बन गया, बोलो पिप्रिडीन। तो ये क्या है, ये एक होमोसाइक्लिक है हेटेरोसाइक्लिक। पिप्रिडीन इज एन हेटेरोसाइक्लिक एमीन, क्योंकि जो रिंग स्ट्रक्चर है उस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन एटम भी आ गया है, सो इट इज ए हेटेरोसाइक्लिक एमीन। और ये एक कैसी हेटेरोसाइक्लिक एमीन है, ये एक एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक एमीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक एमीन देखेंगे तो वो कैसे होंगे, द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ टू और मोर H atom ऑफ अमोनिया बाय, किसके द्वारा हम उसको रिप्लेस कर दे, बाय द एराइल ग्रुप और द फिनाइल ग्रुप, बाय द एंड द नाइट्रोजन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रिंग। तो आप उसे कहते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक एमीन। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपका हेटेरो एटम आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है, और इस स्ट्रक्चर का नाम भी क्या है, हमने पहले ही बताया था, इट इज ए पिरिडीन। बोलो कौन है ये पिरिडीन है। तो ये आपने देखी टाइप्स होमोसाइक्लिक एमीन और हेटेरोसाइक्लिक एमीन्स की। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन एमीन्स की। जितने भी हमने पढ़ी, जितने भी एमीन्स हमने पहले देखे, चाहे वो एलिसाइक्लिक थे, एरोमेटिक थे, होमोसाइक्लिक थे, हेटेरोसाइक्लिक थे, एलिफेटिक थे, कोई भी थे, all these amines are collectively further be subdivided, further be classified in the following ways, that is the primary amine or the secondary or the tertiary amine or the quaternary ammonium salt। तो प्राइमरी अमीन कौन होंगे, प्राइमरी अमीन तभी होंगे अगर जो अमोनिया है, अमोनिया का जो एक H है, सिर्फ एक H हटा के हम वहां पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें या एक कार्बन अटैच कर दे। इफ द नाइट्रोजन इज अटैच्ड ओनली वन टाइम विद द कार्बन एटम, नाइट्रोजन एक बार अटैच हो जाए कार्बन से, तो आप उसे कहते हैं प्राइमरी अमीन। So the compounds in which the nitrogen atom is linked with one carbon atom या attached one time with the carbon atom, ये ध्यान रखें, मैं दूसरा शब्द भी साथ के साथ बोल रहा हूँ कि the nitrogen atom is linked with one carbon atom और attached one time with the carbon atom। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से ये एक ही बार अटैच है, मतलब एक ही बॉन्ड से अटैच है। तो नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड बाय वन बॉन्ड विद द कार्बन एटम, दैट इज द प्राइमरी अमीन। ऐसा मैंने इसलिए कहा, देखो अगले कुछ एग्जांपल हम ले लें, उसके बाद सब सेकेंडरी अमीन आएगी तब हम आपको बताएंगे यही चीज। अब इसमें भी देखें, द इन दैट पर्टिकुलर केस द नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड वन टाइम विद द कार्बन एटम, या अटैच्ड विद वन कार्बन एटम। जो फर्दर और कार्बन एटम है उससे डायरेक्टली अटैच नहीं है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अटैच्ड ओनली विद वन कार्बन एटम, सिर्फ एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है और वन टाइम अटैच है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इस एग्जांपल में, देखें हियर आल्सो द नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड ओनली विद वन कार्बन एटम एंड अटैच ओनली वन टाइम विद द कार्बन एटम, एक ही बार अटैच है। तो ये जो बातें हम बोल रहे हैं वन टाइम, आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो कुछ ऐसे है, हम देखो थोड़े साइड में आपको बता दें, मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसने क्या किया, ये किसी कार्बन से अटैच है, देखो वन टाइम अटैच हो गया, डबल बॉन्ड बना लिया, तो टू टाइम अटैच हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, तो देखो ये थ्री टाइम अटैच हो गया, देखो इससे 1 2 3, देखो इस टाइप से, और एक बार अटैच, तो देखो इसको कहते हैं वन टाइम अटैच। डबल बॉन्ड बना लिया मीन्स टू टाइम अटैच, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया मीन्स थ्री टाइम अटैच। तो अगर एक टाइम अटैच हो तो वो प्राइमरी अमीन की कैटेगरी आ जाती है, टू टाइम अटैच हो तो सेकेंडरी अमीन की कैटेगरी आ जाती है, थ्री टाइम अटैच हो तो वो टर्शियरी अमीन की कैटेगरी में चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ यही नहीं देखना डेफिनेशन के अंदर कि द कंपाउंड इन विच द नाइट्रोजन एटम इज लिंक्ड विद वन कार्बन एटम, इसके साथ साथ ये भी देखना है अटैच्ड विद वन कार्बन एटम, और यू कैन से अटैच वन टाइम विद द कार्बन एटम। अब सेकंड जो हमने अभी आपको ये केस बताया, देखो यहाँ पे एन डबल बॉन्ड सी करके जो दिखाया, यहाँ पे दिखने में तो ये दिखता है कि नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड विद वन कार्बन एटम, लेकिन हमें साथ ध्यान रखना है नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू टाइम विद द कार्बन एटम, एक बार अटैच फिर दूसरा बॉन्ड बनाया फिर दूसरी बार अटैच, सो इट इज ए सेकेंडरी अमीन। टर्शरी में इस एन और सी के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड हमने दिखाया, तो वहां पे क्या दिखाया, नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड थ्री टाइम विद द कार्बन एटम। तो इस टाइप से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो अब देखो सेकेंडरी अमीन की हम डेफिनेशन देखिए, उससे पहले ये एग्जांपल, और आप इसमें भी देखें नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड विद वन कार्बन एटम और अटैच्ड वन टाइम विद द कार्बन एटम,
दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ एग्जांपल अभी ऐसे आने वाले हैं जिसमें ये टाइम्स जो मैं करके बोल रहा हूँ, अटैच वन टाइम विद आपके कार्बन एटम, ये बात अगर आप याद नहीं करेंगे तो वो एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन एटम, कि नाइट्रोजन एटम कितने टाइम अटैच है कार्बन से, आप देख पाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो सेकेंडरी अमीन। आप इसमें देखें तो सिंपल डेफिनेशन तो वही है जो आमतौर पे हम पढ़ते हैं, द कंपाउंड्स इन विच द नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम या टू एल्काइल ग्रुप are called as the secondary amine, या फिर वही बात, नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू टाइम विद द कार्बन एटम, अटैच्ड टू टाइम विद द कार्बन एटम। तो यहाँ पे अपने इस एग्जांपल में तो आपने क्या देखा, बोलो ये कितने कार्बन से अटैच है, देखो दो कार्बन से अटैच है, देखो सेपरेटली अटैच है, एक कार्बन से अलग, दूसरे CH3 ग्रुप से अलग। तो ये यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल ठीक है कि द कंपाउंड इन विच द नाइट्रोजन एटम इज लिंक्ड विद टू कार्बन एटम, तो उसे आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी अमीन। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में देखें आप, इसमें आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन एटम में नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, या कह सकते हैं अटैच्ड टू टाइम सेपरेटली विद द कार्बन एटम। तो देखो ये आपका pyridine है, जैसे हमने पीछे आपको बता दिया था। अब टर्शरी अमीन में देखेंगे आप, देखो द कंपाउंड इन विच द नाइट्रोजन एटम इज लिंक्ड विद थ्री कार्बन एटम या और अटैच्ड थ्री टाइम्स विद द कार्बन एटम आर कॉल्ड टर्शरी अमीन। देखो यहाँ पे थ्री कार्बन एटम से सेपरेटली अटैच है, लेकिन इस एग्जांपल में देखिए जिसका नाम है pyridine, तो क्या यहाँ पे आपको जो नाइट्रोजन एटम है देखो वन कार्बन से अटैच, देखो ये सेकंड कार्बन से अटैच, अगर आप ये कहें कितने कार्बन से अटैच तो आपको दो से दिख रहा है, लेकिन मोर करेक्टली देखें तो ये थ्री टाइम्स अटैच विद द कार्बन एटम। थ्री टाइम कैसे, देखो मैं नीचे स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दूं, देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो वन टाइम अटैच विद द कार्बन, ये सेकंड टाइम अटैच विद द कार्बन, और ये देखो ये थ्री टाइम अटैच विद द कार्बन, हो गया ना थ्री टाइम्स, वन टाइम देखो जिधर सिंगल बॉन्ड बना, इधर वन टाइम, फिर सेकंड टाइम, हो गया ना थ्री टाइम अटैच विद द कार्बन एटम। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी अमीन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया है, बोलो ये टर्शरी अमीन का एग्जांपल हो गया है। तो इस टाइप से आप टर्शरी अमीन की डेफिनेशन को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कौन होंगे, द कंपाउंड्स इन विच द नाइट्रोजन एटम इज लिंक्ड विद फोर कार्बन एटम और कॉल्ड द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जैसे आपको नीचे एग्जांपल में दिख रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन जब थ्री बॉन्ड्स बना लेता है तो थ्री बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास बोलो क्या बचता है, अभी हमने पीछे कॉन्जुगेशन में भी आपको बताया था, इट हैज ओनली वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और सो लोन पेयर की हेल्प से वो क्या बना सकता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो बनता कैसे वो बता दें, फिर ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। देखो आपके पास हमने ये टर्शरी अमीन लिया, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3 है, एक लोन पेयर आपको अटैच होता हुआ दिख रहा है। अब हमने कोई एल्काइल हैलाइड के साथ देखो इसकी रिएक्शन करवाई, एल्काइल हैलाइड में कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so the Cl attract these bond pair electron towards itself, so the Cl acquires slight negative charge, carbon acquires slight positive charge। अब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करे, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एटम हैविंग द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, सो दैट इज द कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल हैलाइड। तो इसने अपने लोन पेयर को डोनेट किए, डोनेशन मींस द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड। तो यहाँ पे जो टर्शरी अमीन है ये आपकी, जब नाइट्रोजन के ऊपर जिसपे CH3 और ये लोन पेयर अटैच है, ये टर्शरी अमीन है, ये जो इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, फोर्थ बॉन्ड बनाएगा ये, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा। तो एक डोनर होगा नाइट्रोजन जिसपे लोन पेयर, ये डोनर है स्पीसी, दूसरा एक्सेप्टर है जो एल्काइल हैलाइड है, वो एक्सेप्टर का काम करेंगे। ऐसे कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन के एक बॉन्ड टूटेगा, जरूर टूटेगा, वही जो कि आपके इजी लिविंग ग्रुप है। इजी लिविंग ग्रुप कौन है, बोले यहाँ पे Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, देखो जैसे हमने शो कर रखा है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव के साथ कौन घूमेगा यहाँ पे, कोई नेगेटिव चीज, नेगेटिव कौन है, जो Cl जो लिविंग ग्रुप अभी निकला था। सो दैट इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया, बोलो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखी आपके अमीन्स की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन और द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं ये और सिंपल सी डेफिनेशन हमारी ज्यूट्राइन। ज्यूट्राइन को आमतौर पे जो हम स्टडी करते हैं वो आपके, हम स्टडी करते हैं आपके एमिनो एसिड्स के अंदर, जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं। जैसे आपका जो घर बनता है उसमें बार बार चीजें जो रिपीट होती हैं वो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं। सिमिलरली जो प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं, उसमें जो मोनोमेरिक यूनिट है जो बार बार रिपीट होती है वो आपके एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, और इस टाइप से उनके रिपीटिशन से, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके कंडेंसेशन से जो चीजें बनती है वो होती है प्रोटीन। तो जो आपका अमीनो एसिड होता है, उस एमिनो एसिड के अंदर आप देखेंगे एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे, आपको दो दो ग्रुप लगे हुए दिखाई देंगे। एक एसिडिक ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप होगा, एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, जो ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ज्यूट्राइन है क्या, पहले हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो एमिनो एसिड,
जिसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम है। ये कायरल हो भी सकता है, ना भी हो, मीन्स कार्बन के ऊपर एक हमने H लगा दिया, एक R ग्रुप लगा दिया, R की वैल्यू H भी हो सकती है, जिसे ग्लाइसिन कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, if the value of R here is H then the compound thus is the ग्लाइसिन, उस एमिनो एसिड का नाम ग्लाइसिन हो जाएगा। अब कार्बन के एक साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, राइट साइड में आपके CH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप, एक आपका बेसिक ग्रुप, इसलिए कंपाउंड का नाम है एमिनो एसिड। एमिनो मींस एमिनो ग्रुप भी है, एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। दीज टू ग्रुप्स आर अटैच ऑन द सेम कार्बन एटम। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है यहाँ पे, उस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो ग्रुप है, उससे जो अगला कार्बन होता है उसे आप कहते हैं अल्फा कार्बन एटम। बोलो उसे आप क्या कहते हैं, दैट इज द अल्फा कार्बन एटम। देखो इस स्टेप से। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि नाइट्रोजन पे हमने लोन पेयर क्यों दिखाया, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। नाइट्रोजन की कॉन्जुगेशन 1s2 2s2 2p3 है, और वैलेंस शेल को ओपन फॉर्म में लिखें तो आपने क्या देखा, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p के अंदर 3 हैं। 2s वाले इलेक्ट्रॉन आगे हम एक्साइट नहीं कर सकते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन द नाइट्रोजन एटम। सो 2s इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द लोन पेयर, और नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाने होते हैं क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस जो आपके एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर, इसमें जो NH2 ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, 2 H अटैच है, 2 कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसलिए एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये आपके देखो अल्फा कार्बन एटम हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा। उससे अगला भी कोई होता तो उसे क्या कहते हैं, बीटा। क्या कहते हैं, बीटा। यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्फा पोजीशन पे अटैच है, सो इट इज कॉल्ड एज अल्फा एमिनो एसिड। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें, बड़े ध्यान से देखें, मान लीजिए ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता, सिर्फ थोड़ा समझने के लिए आपको बता दें, ये नेक्स्ट कार्बन जैसे मैंने बताया अल्फा है, इससे नेक्स्ट कोई कार्बन होता तो उसे बीटा कहते हैं, इससे नेक्स्ट और भी कोई कार्बन होता तो उसे आप गामा कहते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस जो अभी हमने एमिनो एसिड दिखाया, वहां पे जो आपका ये ग्रुप था अल्फा, इसके ऊपर देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा पोजीशन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप, सो इट इज द अल्फा एमिनो एसिड। अगर यही जो अल्फा ग्रुप आपने यहाँ पे देखा, अगर इस जो अल्फा पोजीशन के ऊपर जो NH2 ग्रुप हमने लगाया, ये अल्फा पोजीशन पे ना लगा के और हम बीटा पे लगा देते, तो देखो ये कहलाता बीटा एमिनो एसिड। अगर इसी NH2 ग्रुप को हम बीटा पे ना लगा के अगर अल्फा बीटा के बाद गामा पे लगा दें तो दिस कॉल्ड गामा एमिनो एसिड। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एमिनो एसिड होते हैं ऑल आर अल्फा एमिनो एसिड। हमारी जो एमिनो एसिड होते हैं टोटल, दीज आर दी 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड होते हैं टोटल। कुछ हमारी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज हो जाते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं। जो बन जाएं वो हमारे नॉन एसेंशियल, जो हमें थ्रू प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट के थ्रू लेते हैं, वो आपके एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। फिलहाल खैर आप ये जान ही चुके हैं कि ये अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, इन्हीं की हमें जरूरत होती है, तो इसलिए हमने एग्जांपल भी अल्फा एमिनो एसिड का ही लिया, कोई बीटा और गामा वाला नहीं लिया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक एसिडिक एक बेसिक ग्रुप, तो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव देखो लॉस कर सकता है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लिए, OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट किए, H पॉजिटिव बन जाएगा। अब इस H पॉजिटिव जो बन गया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया किसने, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दिए, मींस वो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और CO नेगेटिव बन गया, दैट इज द ज्विट्रायन। इसी को ज्विट्रायन कहते हैं। ज्विट्रायन कैसी स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, इसमें एक पॉजिटिव ग्रुप है, एक आपका नेगेटिव ग्रुप है। दीज पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप मे और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सेम सेंट्रल कार्बन एटम। ये दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं, जैसे NH2 NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे CO नेगेटिव, these two group may be present on the same central carbon atom or may not be present। जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो आपने देखा जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसी के ऊपर तो CO नेगेटिव प्रेजेंट है और उसी के ऊपर NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ना भी हो, जैसे यहाँ पे तो प्रेजेंट है ऑन द सेम कार्बन एटम। सो द स्पीसीज विच आर द ओवरऑल न्यूट्रल, या ओवरऑल न्यूट्रल है, एंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और द नेगेटिव ग्रुप। मींस न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसलिए सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप तो होने ही चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ज्विट्रायन। और जो एमिनो एसिड होते हैं हमारी, जो मैंने बताया हमारी बॉडी के अंदर 10 तो होते ही हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, जिन्हें नॉन एसेंशियल कहते हैं, जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। क्योंकि नॉन, यहाँ पे एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी को उनकी जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल का मतलब उन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल का मतलब जरूरी बाहर से नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी उनको खुद सिंथेसाइज कर लेती है। और दूसरे होते हैं 10 होते हैं आपके एसेंशियल एमिनो एसिड, उनकी हमारी बॉडी को जरूरत है। दीज मस्ट बी टेकन थ्रू द बैलेंस डाइट, उन्हें हम बैलेंस डाइट के थ्रू लेते ही हैं। तो ये मतलब था यहाँ पे एसेंशियल का, आप इसको गलत इंटरप्रेट ना करें। तो ये ज्विट्रायन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो ही ग्रुप हैं बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरा NH2 ग्रुप। दीज आर प्रेजेंट पैरा टू ईच अदर इन दैट पर्टिकुलर केस, सो कॉल्ड द पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैप बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी एक एसिडिक एक बेसिक ग्रुप, उसी टाइप से ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये
इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि इसको लोन पेयर पीछे से मिल ही जाएंगे, और फिर जो H पॉजिटिव की जो ट्रांसफरेंस हुई है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, उन्होंने अपने लोन पेयर डोनेट किया H को, जो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा यहाँ से। तो अब जो स्ट्रक्चर बनी इसके अंदर भी आप देखें, देयर आर टू ग्रुप्स बट दीज आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम सेंट्रल कार्बन एटम, बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है, उसी सेम बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो दैट इज आल्सो द ज्यूट्राइन, ये भी ज्यूट्राइन है, ये भी न्यूट्रल स्पीसी है, इसके ऊपर भी सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ज्यूट्राइन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी टाइप का एग्जांपल, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड ले लेते हैं ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हमने सल्फोनिक एसिड ग्रुप लिया, बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पे भी देखो ये और H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है जिस पे लोन पेयर, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, H पॉजिटिव आयन का ट्रांसफरेंस होगा देखो, और ऑक्सीजन ने देखो अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसी टाइप से फिर से दो ग्रुप बन गए, एक नेगेटिव पॉजिटिव ग्रुप, एक SO3 नेगेटिव ग्रुप बन गया, एक NH3 पॉजिटिव ग्रुप बन गया, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं हम, इसका नाम भी स्पेसिफिक, दैट इज द सल्फेनिलिक एसिड, और ये ज्यूट्राइन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ज्यूट्राइन की फॉर्म में। ये तो हो गया अबाउट द ज्यूट्राइन कि what are ज्यूट्राइन और द डाइपोलर सॉल्ट, मींस these are those species which are all are neutral and contains the same number of positive और the negative group, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्या हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप हो। दे मे और मे नॉट बी अटैच, ये बात जरूर ध्यान रखें, दीज टू ग्रुप मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी अटैच विद द सेम सेंट्रल कार्बन एटम, जैसे, लेकिन अटैच जरूर होने चाहिए किसी एटम से, ये बात जरूर ध्यान रखें। ये जो दो ग्रुप हैं, सेम नंबर ऑफ जो हमने ग्रुप बताए, द पॉजिटिव ग्रुप और द नेगेटिव ग्रुप, दे आर नॉट बी द फ्री ग्रुप, ये फ्री नहीं होने चाहिए, दीज मस्ट बी अटैच्ड, these must be attached, either may or may not be the on the same central carbon atom, अटैच जरूर हो, चाहे वो सेम कार्बन एटम से अटैच हो या डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच हो, लेकिन अटैचमेंट जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज आप ये कह सकते थे कि जैसे NaCl है, इसके अंदर भी देखो, अगर आप देखें तो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप है यहाँ पर भी, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन ये आपके फ्री आयंस हैं, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव किसी और सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है, इसलिए NaCl को हम ज्यूट्राइन नहीं कह सकते हैं, आप इसको डाइपोलर सॉल्ट नहीं कह सकते हैं। तो कई बार ये बात हमारे दिमाग में आ सकती है कि यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl जो नेगेटिव NaCl जो है, इसको हम ज्यूट्राइन क्यों नहीं कह रहे, जबकि ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है, इसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ग्रुप है। लेकिन ध्यान रखना है डेफिनेशन के अंदर कि बट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ग्रुप विच मस्ट बी अटैच, यहाँ पे हम लिख देते हैं देखो साथ के साथ, विच मस्ट बी अटैच, विच may or may not be attached, which may or may not be attached, which may or may not be attached to the same central कार्बन एटम, आमतौर पे सेंट्रल कार्बन एटम ही होगा, ये चीज आप जरूर ऐड कर देना साथ के साथ। तो अब पूरी डेफिनेशन क्या होगी, द स्पीसीज विच आर ओवरऑल न्यूट्रल बट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ग्रुप्स विच मे और मे नॉट बी अटैच्ड टू द सेम सेंट्रल कार्बन एटम, वो सेम सेंट्रल कार्बन एटम से अटैच हो या ना हो, तो वो आपके ज्यूट्राइन होंगे। NaCl के केस में ऐसा नहीं है, उसके अंदर कोई सेंट्रल एटम ही नहीं है, या मींस वो तो फ्री आयंस हैं आपके, इसलिए NaCl को हम ज्यूट्राइन नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए आप उस बेसिस के ऊपर जो अभी मैंने बताया, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आउट ज्यूट्राइन की कैटेगरी से बाहर कर सकते हैं NaCl को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का इफेक्ट क्या होगा आपके ज्यूट्राइन के ऊपर, अगर हम पीएच को चेंज कर दें, बेसिक मीडियम कर दें, एसिडिक मीडियम कर दें, तो ये यहाँ पे तो क्या है, दो ग्रुप है, एक पॉजिटिव ग्रुप है, एक नेगेटिव ग्रुप है, तो क्या हम पीएच चेंज कर देंगे तो क्या दोनों ग्रुप ऐसा रहेंगे, क्या इन दोनों में से कोई एक ग्रुप आपका डिसअपियर हो जाएगा, क्या होगा, वो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द पीएच के ऊपर। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन द ज्यूट्राइन एग्जिस्टेंस, ज्यूट्राइन की एग्जिस्टेंस के ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ वी डन द बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम कर दे तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन हमने डाल दिया, NaH डाल दिया, तो क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन विल अब्स्ट्रैक्ट द H पॉजिटिव आयन, किससे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो आपका NH3 पॉजिटिव है, इस NH3 पॉजिटिव के अंदर से जो OH नेगेटिव है वो अपने H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, तो ये NH3 पॉजिटिव NH2 में देखो कन्वर्ट हो गया, NH2 की फॉर्म में, क्योंकि वो तो H पॉजिटिव तो निकल गया, वाटर लॉस हो गया, बोलो यहाँ से, बोलो किसकी फॉर्म में निकल जाएगा फिर वो, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर। तो NH3 पॉजिटिव तो बचा नहीं, हाँ सिर्फ नेगेटिव ग्रुप तो बच गया, SO3 नेगेटिव,
जो आपके ग्रुप लगा हुआ था, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो मीन्स बेस का इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। तो मीन्स क्या हो गया बोलो, एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एनायनिक फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट कर जाता है। यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो नेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव कौन आ गया, जैसे NaOH डाला तो Na पॉजिटिव आ गया, और इसलिए इट इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट NaH। इसलिए डाइल्यूट NaH के अंदर बोलो क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना, बेसिक मीडियम द ज्विट्राइन कन्वर्टेड इन एनायनिक फॉर्म, तो एनायनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम मींस H पॉजिटिव आयन हो गए। H पॉजिटिव आयन हो गए तो कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव पार्ट के पास जाएंगे। तो नेगेटिव पार्ट बोलो कौन है यहाँ पे, जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे वो कौन है, वो SO3 नेगेटिव है। तो SO3 जो नेगेटिव था इस पर्टिकुलर केस में, सल्फेनिलिक एसिड के केस में, वहाँ पे H पॉजिटिव आयन गए तो क्या बन गया, वो SO3H में कन्वर्ट हो गया। और जो H पॉजिटिव आयन हुआ NH3 पॉजिटिव के पास तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर है, तो कैटायनिक फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है। तो सल्फेनिलिक जो एसिड था, जो एक ज्विट्राइन था, it get converted in cationic form in the acidic medium। ज्विट्राइन बेसिक मीडियम में एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके एसिडिक मीडियम के अंदर वो कैटायनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो बातें भी आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये इफेक्ट ऑफ पीएच आप सल्फेनिलिक एसिड के केस में जैसे हमने एक्सप्लेन किया, ऐसा ही एग्जाम में आपसे जो आपके एमिनो एसिड है सिंपल, वहां पे भी देखो अमीनो एसिड भी ज्विट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम आंसर होगा वहां पे भी। जो ज्विट्राइन अमीनो एसिड से बना था, अल्फा अमीनो एसिड से बना था, वहां पे भी बिल्कुल सेम आंसर होगा। मींस बेसिक मीडियम होगा तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एनायनिक फॉर्म में, और आपका एसिडिक मीडियम होगा तो एग्जिस्ट करेगा वो कैटायनिक फॉर्म के अंदर। कोई भी ज्विट्राइन क्यों ना हो, अगर आप किसी ज्विट्राइन के ऊपर इफेक्ट देखेंगे पीएच का, मींस बेसिक मीडियम हो तो क्या, एसिडिक मीडियम हो तो क्या, तो हमारी रीजनिंग रहेगी बिल्कुल सेम, वो बदलेगी नहीं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एमीन्स की स्ट्रक्चर। एमीन की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो मीथेन एमीन की देख लेते हैं। हमने पहले ही बता दिया एमीन्स आर नथिंग बट दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो हम नाइट्रोजन की कॉन्जुगेशन देखिए 1s2 2s2 2p3। तो जैसे हमने बताया वैलेंस शेल जो है ये 2s2 2p3, ये वैलेंस शेल, इसको अगर हम ओपन फॉर्म के अंदर देखो इस टाइप से लिख देंगे, तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 1 1 1 करके हैंड्स रूल के अकॉर्डिंग आपने फिलअप किया। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अपने पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिलअप किए, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन ही होने चाहिए। अब स्ट्रक्चर कैसे बने, नाइट्रोजन के पास 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर होगा, तो नाइट्रोजन के पास देखो ये एक लॉन पेयर हमने दिखाया, और ये 3 बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3, एक बॉन्ड पेयर की हेल्प से H के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे बॉन्ड पेयर की हेल्प से दूसरे H के साथ बॉन्ड बनाया, तीसरे बॉन्ड पेयर की हेल्प से कार्बन से बॉन्ड बनाया, और कार्बन ने अपने बची वैलेंसी H के साथ बॉन्ड बना के पूरी कर ली। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने एमीन्स की, और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे फार्मूला आप स्ट्रक्चर आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का, बोलो क्या फार्मूला होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, इस फार्मूले को जब आप यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड, देखो 1 2 एंड 3, देयर आर द 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 lone pair, so answer is 4। 4 means the hybridization will be the sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो जो जनरल जो स्ट्रक्चर है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट lone pair बस आपकी जो इसकी स्ट्रक्चर है वो आपकी पिरामिडल हो जाती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, पिरामिडल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द lone pair इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल कार्बोनेटम, दैट मींस आर पिरामिडल इन शेप। और इसी पिरामिडल शेप की वजह से ये एक प्रोसेस दिखाते हैं, उसको कहते हैं नाइट्रोजन इन्वर्जन। उसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन इन्वर्जन कह देते हैं। तो ये एक ऐसी रैपिड प्रोसेस होती है जिसके दौरान जो वन एनेंशियोमेरिक फॉर्म है वो देखो दूसरी एनेंशियोमेरिक फॉर्म के अंदर आपकी कन्वर्ट होती रहती है ड्यू टू द वेरी लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जो ये दो फॉर्म है इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है और रैपिड इंटर कन्वर्जन होता रहता है। सो दैट रैपिड इन कन्वर्जन ऑफ वन एनेंशियोमेरिक फॉर्म इनटू द अनदर ड्यू टू द वेरी लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉल्ड द नाइट्रोजन इन्वर्जन। उसे नाइट्रोजन इन्वर्जन कहते हैं। लोन पेयर की वजह से ही ये नाइट्रोजन इन्वर्जन हुआ, अगर लोन पेयर नहीं होगा तो नाइट्रोजन इन्वर्जन नहीं होगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल भी लेंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि लोन पेयर नहीं है, जैसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का लेंगे हम एग्जांपल, तो वो नाइट्रोजन इन्वर्जन प्रोसेस को शो ही नहीं करेगा। अब देखें कुछ छोटी छोटी बातें जो आपसे पूछी जा सकती, आपसे ये पूछे क्या आपका जो मीथेन एमीन है, जैसे मैंने मीथेन एमीन ले लिया क्योंकि एक एच हटा के आपके अमोनिया का एक एच हटा के हमने CH3 ग्रुप ही लगाया है, एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी एमीन है ये, और इस कंपाउंड का नाम मीथेन एमीन है, CH3NH2 है ये, तो मीथेन एमीन है। क्या ये कायरल है? नो, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर आप देखिए चारों ग्रुप अलग नहीं है, दो हाइड्रोजन भी हैं जो एक जैसे हैं। अगर हम लोन पेयर को एक ग्रुप मान ले तो एक लोन पेयर हो गया, एक CH3 हो गया, लेकिन दो कौन है, दो H है जो दोनों सेम है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका कंपाउंड कायरल नहीं होगा। तो मीथेन एमीन इज नॉट कायरल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू सेम हाइड्रोजन एटम ऑन द नाइट्रोजन।
मीथेनेमीन ये रिजोल्वेबल भी नहीं है ड्यू टू द रैपिड नाइट्रोजन इन्वर्जन, क्योंकि इसमें रैपिड नाइट्रोजन इन्वर्जन प्रोसेस चली, इसलिए रिजोल्व नहीं कर सकते दोनों को, क्योंकि वो उसमें कन्वर्ट होता रहता है। दो फॉर्म अलग अलग हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं कि ये फर्स्ट एनेंशियोमेरिक फॉर्म होगी, ये दूसरी एनेंशियोमेरिक फॉर्म है, इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये क्योंकि इनके बीच में फास्ट कन्वर्जन होता रहता है। दे आर रैपिडली गोइंग टू कन्वर्ट इन टू ईच अदर, इसलिए हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इनको रिजोल्व नहीं कर सकते, मींस दे आर नॉट रिजोल्वेबल। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। देखो इसके अंदर आप देखें नाइट्रोजन के ऊपर एक H है, एक C2H5, एक CH3 और लोन पेयर को भी एक ग्रुप मान लिया, तो इसलिए ये कायरल है। बोलो कौन हो गया? कायरल। लेकिन लोन पेयर है इसलिए ये रैपिड इन्वर्जन प्रोसेस तो चलेगी ही, इंटरकन्वर्जन होगा ही, इसलिए ये रिजोल्वेबल नहीं होगा, ये रिजोल्वेबल नहीं, हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे टू फॉर्म्स को। तो ये कंपाउंड जो है इसका नाम क्या होगा? देखो ये तो हमारी प्रिंसिपल चेन बन जाएगी, देखो इस टाइप से। ये तो कौन हो गया? C2H5NH2 मतलब इथेनेमीन। और नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कौन प्रेजेंट है? ये CH3 है, तो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है तो कहेंगे N मिथाइल इथेनेमीन, तो नाम क्या हो गया इसका? N मिथाइल इथेनेमीन। तो जो N मिथाइल इथेनेमीन है आपका, ये कायरल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन एटम, बट इट इज नॉट रिजोल्वेबल। लेकिन ये रिजोल्वेबल नहीं होगा, रीजन वही सेम जो मैंने बताया, ड्यू टू द रैपिड आपकी कन्वर्जन, जो रैपिड इंटर कन्वर्जन हो सकती है, इसलिए दो फॉर्म को अलग अलग आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखो क्वाटरनरी ह्यूमन सॉल्ट, इसमें आप देख पा रहे हैं, देखो चारों ग्रुप बिल्कुल अलग है, कायरल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। साथ के साथ ये रिजोल्वेबल भी है, क्योंकि इसमें कोई नाइट्रोजन इन्वर्जन प्रोसेस तो चलेगी नहीं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लोन पेयर, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे आईपैक नेमिंग कैसे लिखते हैं। एमीन्स NH2 ग्रुप होता है, खोल के कैसे लिखते हैं? एक नाइट्रोजन जिसके ऊपर 2H अलग सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, और एक ये खुद ग्रुप है, तो ये कहीं ना कहीं अटैच होगा किसी ना किसी अल्काइल ग्रुप से, बेंजीन रिंग से, एलिसाइक्लिक रिंग से, किसी ना किसी से जरूर अटैच होगा। अगर ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करे तो आप इसे एमीन कहते हैं, सेकेंडरी का काम करे तो एमिनो कहते हैं। अब आईपैक नेमिंग के बारे में बेसिक तो आप पहले से जानते हैं कि 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द वर्ड रूट विच टेल्स अबाउट द प्रिंसिपल चेन, विच टेल अबाउट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन, विथ हिथ प्रोब आप उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स विच टेल्स वेदर द प्रिंसिपल चेन इज सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड, मींस प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल, उसी के बेसिस पे तो आप ANE, ENE या YNE यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी सफिक्स, इट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यही होती है। एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, इट टेल्स वेदर द प्रिंसिपल चेन इज साइक्लिक और नॉट, प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है भी या नहीं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बताता है। अगर साइक्लिक हो तो आप साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं। और प्रिंसिपल चेन के ऊपर जितने भी ग्रुप अटैच हैं, जितने भी रिमेनिंग ग्रुप अटैच हैं एक्सेप्ट द प्राइमरी फंक्शन, ऑल दोज कम इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हम देखते हैं हमारे इस एग्जांपल को। इसमें आप देखें प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है यहाँ पे, अगर आप इसकी नंबरिंग करें तो कुछ इस टाइप से आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखो 1 2 एंड 3, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल हमें याद करना है, जो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे NH2, उसको लोवेस्ट नंबर देना ही होगा, इसलिए 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे, एमीन है नंबर 1 पे है तो 1 के ऊपर एमीन ग्रुप लगा दिया। अब एमीन का जो फर्स्ट लेटर है A, दैट इज अ वोवल, अगर वो वोवल हो। प्राइमरी जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है, बोलो कौन? सेकेंडरी सफिक्स कौन है यहाँ पे? एमीन। अगर उसका फर्स्ट लेटर वोवल होता है तो जो आपके ANE, ENE या YNE का जो E है वो आपका ड्रॉप कर दिया जाता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो नेम हियर इज प्रोपेनेमीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये भी एमीन जैसा लगता है, बट it is not amine, it is a acidamide, because there the NH2 group is attached with the carbonyl group carbon atom। अगर NH2 कार्बोनिल ग्रुप कार्बन से अटैच ना हो, सिंपल कार्बन से अटैच हो, आपके अल्काइल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच हो, तो आप उसे कहते हैं एमीन। लेकिन इफ द NH2 is attached on the carbonyl group carbon atom, now that whole collective group is now the CONH2 group and it is the amide group। आप इसे amide group कहते हैं। ये CONH2 ग्रुप बन चुका है, ये amide ग्रुप है, लेकिन कार्बन इसमें 3 है उसी टाइप से, तो प्रोप कहेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो ANE ही कहेंगे। सिंगल बॉन्ड हमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच देखना हो, तो आप ये ना कहें कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो फिर हमें ENE लगाना चाहिए। हमारी जो प्रिंसिपल चेन है वो प्रिंसिपल चेन तो कार्बन एटम की चेन होती है, वो किसी और चीज की चेन नहीं होती। देखो ये है हमारी प्रिंसिपल चेन, इस प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE हमने लगाया है। तो इसलिए प्रोप के आगे ANE लगाया, एमाइड है तो 1 पोजीशन रहेगी, नंबरिंग उसी टाइप से चलेगी। देखो आपकी 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन, तो इसलिए 1 पोजीशन पर एमाइड है तो 1 के ऊपर एमाइड, एमाइड का A वोवल है तो ANE का E को ड्रॉप कर देंगे, तो इसलिए नेम बन गया प्रोपेन एमाइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने ली, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2 एक CH। CH आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा,
प्रायोरिटी सीक्वेंस में अगर देखें तो CH पहले आता है, NH2 बाद में, तो इसलिए NH2 यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। नंबरिंग उसी टाइप से CH को लेकिन लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3, तो इसलिए नाम बनेगा 3 कार्बन, तो उसी टाइप से प्रोप। ओइक एसिड 1 पोजीशन पे है, बीच में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन की चेन के अंदर, तो ANE आ गया। 1 पोजीशन पे CH है तो ओइक एसिड लगा दिया। 3 पोजीशन पे NH2 है, सेकेंडरी का काम करे तो एमिनो बोलेंगे, जैसे ऊपर आपको बता दिया गया था कि अगर सेकेंडरी का काम करे तो एमिनो और प्राइमरी का काम करे तो एमीन, तो एमिनो होने लगाना पड़ेगा 3 पोजीशन के ऊपर, तो 3 एमिनो हो गया, तो नाम हो गया 3 एमिनो। प्रोपेन 1 ओइक एसिड या सिंपल प्रोपेनोइक एसिड आप कह सकते हैं। ओइक एसिड का ओ वोवल है, इसलिए ANE के ई को हम ड्रॉप कर देंगे, तो नेम हो गया 3 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर आप देखिए दोबारा से जो आपकी प्रिंसिपल चेन है, तो उसके अंदर कितने कार्बन आपके 3 हो गए। ये एक सेकेंडरी अमीन है, बोलो कैसा अमीन है, इट इज ए सेकेंडरी अमीन, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो दो दो कार्बन से अटैच है। देखो एक तो ऊपर CH3 वाले कार्बन से, देखो इस कार्बन से अटैच है, एक ये जो 3 कार्बन की चेन है इस वाले कार्बन से अटैच है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमीन। तो ये सेकेंडरी अमीन भी देखो हमने यहाँ पे लिया है। अब इसका हमें आईपैक नेम देखना है। अब ये देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो दो दो एल्काइल ग्रुप है, कौन सी चेन लंबी है, प्रोपाइल वाली चेन लंबी है, 3 कार्बन वाली चेन लंबी है, तो उसी को आप प्रिंसिपल चेन मानेंगे, तो वो आपकी प्रिंसिपल चेन होगी। तो इसलिए नाम कैसे बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रो बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ANE बोलेंगे, और आपके एमीन है तो एमीन ही लिख देंगे। 1 पोजीशन के ऊपर एमीन। नंबरिंग आप उसी टाइप से करेंगे, देखो ये 1 ये 2 और 3, तो 1 के ऊपर एमीन है तो 1 एमीन लिख दिया हमने। उसके बाद अब सब्सटीट्यूएंट, जो ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है ये सब्सटीट्यूएंट है। ये जो प्रिंसिपल चेन वाले कार्बन है उनसे अटैच नहीं, ना नंबर 1 पे अटैच, ना 2 पे, ना 3 पे, ये कहीं और अटैच है और कहीं वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है, इसलिए हम जो सब्सटीट्यूएंट है वो मिथाइल है। एक कार्बन वाला ग्रुप मिथ है, ग्रुप है तो YL लगाएंगे तो मिथाइल हो गया। पोजीशन इसके नाइट्रोजन है तो इससे पहले N लिख देंगे, कैपिटल N फिर डैश मिथाइल, N मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, सो द नेम हियर इज N मिथाइल प्रोपेनएमीन। उसी टाइप से एमीन का पहला लेटर A वोवल है तो ANE के E को हटा देंगे, तो इसलिए नाम बन जाएगा N मिथाइल प्रोपेनएमीन। लास्ट में हम दोबारा से आपको फिर से याद दिलाते हैं, आप कभी भी पजल ना हो एमीन और एसिडमाइड के बीच, इसलिए एक स्ट्रक्चर फिर से दोबारा से ड्रा करते हैं आपके सामने। एक ही कंपाउंड के अंदर देखिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर 2 आपको NH2 ग्रुप दिख रहे हैं। आउट ऑफ दीज 2 NH2 group, one NH2 group is attached with the carbonyl group carbon atom, जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया, तो that is the CONH2 whole, that is the एसिडमाइड जैसे मैंने लिखा। दूसरा NH2 सिंपल कार्बन एटम से अटैच है, वो कार्बोनिल वाला कार्बन नहीं, तो that is the amine ग्रुप। तो आपके 2 ग्रुप है इसमें, एक तो एमीन ग्रुप है और दूसरा कौन है आपके एसिडमाइड ग्रुप है। तो इस टाइप से आप पहचान में बिल्कुल भी गलती ना करें। नेक्स्ट हम दिल लेते हैं इसके बाद कुछ सिंपल कंपाउंड, जैसे इसको बेंजीन कहते हैं। बेंजीन का अगर एक H हटा दें, एक H जो रेड कलर से हमने दिखाया, तो फिनाइल ग्रुप बन जाता है। और जो फिनाइल ग्रुप बन गया उसके ऊपर हम क्या लगाएं, उसके बेसिस पर उसके नाम है। देखो जैसे NH2 लगा दिया तो उसका नाम एनिलीन है। अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर से एक से ज्यादा H हटा दें, देखो ये एक से ज्यादा, तो उसे एराइल कहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिनाइल एंड द एराइल। बेंजीन रिंग के ऊपर से एक H हटाएं तो फिनाइल, एक से ज्यादा H हटाएं तो एराइल। अब जो आपका एराइल बन गया, जो फिनाइल बन गया था, अगर उसके ऊपर ग्रुप लगाया NH2 तो एनिलीन कहते थे। अगर CH3 लगा दे तो उसे क्या कहेंगे, मिथाइल बेंजीन या टोल्विन। जो ये टोल्विन बन गया, इसके ऊपर जो आपने एलिफेटिक ग्रुप लगाया है, CH3 ग्रुप लगाया है आपने, इस CH3 ग्रुप का एक H हटा दे तो रिमेनिंग ग्रुप कॉल्ड, बोलो क्या, बोलो क्या कहें, बेंजाइल। तो ये आपका बन गया बेंजाइल ग्रुप। देखो CH3 का एक H हटा दिया हमने, बेंजाइल है। अब ये जो बेंजाइल बन गया, इस CH2 के ऊपर क्या लगाते हैं, NH2 लगाएंगे तो बेंजाइल अमीन, OH लगाए बेंजाइल अल्कोहल, Ca लगाए बेंजाइल क्लोराइड। तो इस टाइप से इनके नेम बनते चले जाते हैं। आईपैक नेम कैसे बोले, प्रिंसिपल चेन कौन सी ले, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन हैविंग द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है, वो बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। तो 2 तरह की यहाँ पे प्रिंसिपल चेन बन सकती थी, या तो बेंजीन रिंग को प्रिंसिपल चेन मानते या CH2 ग्रुप को हम प्रिंसिपल चेन मानते, तो CH2 ग्रुप को ही प्रिंसिपल चेन मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर NH2 अटैच है। तो प्रिंसिपल चेन के अंदर एक ही कार्बन हुआ, तो एक कार्बन हो तो उसे मिथ कहेंगे, तो मिथ हो गया। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE हो गया, एमीन है NH2 ग्रुप तो एमीन हमने लगा दिया अपन एमीन। तो नंबरिंग यहाँ पे ही होगी। अब सब्सटीट्यूएंट का काम करेगा बेंजीन, सब्सटीट्यूएंट का काम करे तो ऊपर हमने बताया था, क्योंकि एक ही H हमने हटाया है बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग एक ही कार्बन के थ्रू अटैच है तो फिनाइल कहेंगे आप उसको। तो नंबर 1 के ऊपर कौन अटैच है, फिनाइल। नंबर 1 के ऊपर मिथेनेमीन का ANE का E फिर से हम ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ एमीन इज वोवल, A इज ए वोवल ऑफ द एमीन, एमीन के अंदर A वोवल है, तो नाम क्या बन गया, 1 फिनाइल मिथेनेमीन। ऐसे ही हम अगर इथीन ले लें, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथ प्लस ENE इथीन कहते हैं। अगर अब इस इथीन का एक H हटा दें तो उसे विनाइल ग्रुप कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, एक H हटा दें
तो विनाइल कहते हैं। NH2 लगा दिया तो विनाइल एमीन, OH लगा दे विनाइल अल्कोहल, Cl लगा दे तो विनाइल क्लोराइड आप कह देते हैं। तो अगर इस NH2 को अगर हम देखो छुपा ले इस टाइप से, तो ये ग्रुप बोलो कौन है, ये विनाइल ग्रुप है। NH2 लगा दिया इसलिए तो इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप। अगर इसका आईपैक नेम बोले तो बोलो कैसे बोलेंगे, इसको लोवेस्ट नंबर देना ही पड़ेगा। देखो इस टाइप से 1 2, तो बोलो क्या नाम हो जाएगा, जैसे इथ हो गया, डबल बॉन्ड है तो ENE हो गया, 1 पोजीशन के ऊपर है तो इथवनीन कह सकते हैं। आप बताइए 1 2 के बीच तो लोवेस्ट नंबर 1 ही होगा, 2 ही कार्बन है, तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं। और उसके बाद क्या हो गया, एमीन हो गया, तो एमीन लिख देंगे, 1 पोजीशन पे ही है। तो ENE का E हटा देंगे क्योंकि एमीन का फर्स्ट लेटर ए वोवल है, तो नाम क्या बन गया, इथीन एमीन। क्या नाम बन गया, इथीन एमीन। नेक्स्ट हम इथीन के बाद प्रोपीन अगर एग्जांपल ले लें, ये प्रोपीन है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड, प्रोप्स, डबल बॉन्ड है तो ENE आ गया, सिंपल है प्रोपीन। अगर यहाँ पे जो CH3 है उसका एक H हटा दें तो आपका एलाइल ग्रुप बन जाता है। देखो ये हमने एक H हटाया CH3 का, देखो ये जो ग्रुप लगा हुआ था इसको मैंने ऐसे छुपा लिया, दैट इज एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप है। इस एलाइल ग्रुप के ऊपर हम क्या ग्रुप लगाते हैं, NH2 लगा दिया तो एलाइल एमीन बन गया, देखो एलाइल एमीन। OH लगा दे तो एलाइल अल्कोहल, Cl लगा दे तो एलाइल क्लोराइड बन जाता है। तो इस टाइप से हम ये डिफरेंट इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं। तो इसका आईपैक नेम बोलेंगे तो बोलो कैसे बोलेंगे, उसी टाइप से। फंक्शनल ग्रुप को देखो इसको नंबर 1 ही देना पड़ेगा, एमिनो ग्रुप है, देखो 1 2 एंड 3 इस टाइप से नंबरिंग करेंगे हम। तो प्रिंसिपल चेन के अंदर देखो आपके 3 कार्बन है, प्रिंसिपल चेन में बोलो कितने कार्बन हो गए आपके, देयर आर 3 कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन। तो प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड कहाँ पे 2 और 3 के बीच में, तो 2 हो जाएगा, 2 इन हो गया। एमीन है तो आगे एमीन लगा देंगे 1 पोजीशन के ऊपर। उसी टाइप से एमीन ए वोवल है तो ENE का E हटा देंगे, नाम बन जाएगा प्रोप 2 इन एमीन, प्रोप 2 इन एमीन। तो इस टाइप से हमने इन कंपाउंडों की कुछ एक की आईपैक नेमिंग भी देखी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और कंपाउंड है हमारे जो हेटेरोसाइक्लिक एमीन्स है, उनकी नंबरिंग भी देख लेते हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं, उनमें ये भी देख लेंगे कि वो कौन से एमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, थोड़ी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये पहला कंपाउंड इसको कहते हैं पायरोल। बोलो क्या है ये, पायरोल। 5 मेंबर्ड रिंग है, इस कंपाउंड का नाम पायरोल है। हेटेरो एटम आपका नाइट्रोजन है। ये जो कंपाउंड है ये आपका एरोमेटिक है या नहीं, आप बताएं। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन एटम, मैंने आपको ध्यान हो बिल्कुल आज के लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बताया था कि साइक्लिक कंजुगेशन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दो चीजें आपको देखनी होती है किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैंने बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस साइक्लिक कंजुगेशन कैसे देखें। साइक्लिक कंजुगेशन देखने का सीधा तरीका जो आपको डायरेक्ट आंखों से दिख जाए, मींस द डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली इन द रिंग, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे। डबल बॉन्ड आर नॉट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली इन द रिंग, डबल सिंगल, डबल आगे सिंगल और सिंगल ही हो गए। तो अगला तरीका क्या है देखने का कि साइक्लिक कंजुगेशन है या नहीं। आपको ऐसा एटम देखें जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है। नाउ द इफ देयर इज एन एटम हैविंग द लोन पेयर and that atom having the lone pair or the positive charge or the negative charge is attached from two side, देखो right और left, by single bond to that atom which further have conjugation। जिन्होंने further conjugation बना रखी हो, तो आप नाइट्रोजन को देखें जिसके पास लोन पेयर है, आगे सिंगल बॉन्ड से ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जिसमें आगे फर्दर कंजुगेशन है, देखो डबल सिंगल डबल। ऐसे ही लेफ्ट साइड में ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जिसमें फर्दर आगे कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल। तो मींस ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे बिकम्स द पार्ट ऑफ द कंजुगेशन। ये नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर हैं दे बिकम्स द पार्ट ऑफ द कंजुगेशन। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स, देखो तो 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पाई बॉन्ड के हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। नाउ द टोटल देयर आर द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे। और 4n+2 जो 4n प्लस में 2 पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं, वो जो रूल है हमारा, उसमें अगर आप n की वैल्यू अगर हम क्या पुट कर दें, 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे। n की वैल्यू बोलो कितनी पुट कर दें, 1, तो आंसर 6 ही आता है। तो इसमें 6 हो गए, किसकी वजह से हुए, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर। तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन कंजुगेशन इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, और साथ के साथ साइक्लिक कंजुगेशन भी बन गई। तो इसके अंदर दोनों बातें हो गई। तो इसलिए पायरोल क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक है, और ये आपका हेटेरोसाइक्लिक एमीन है, because here the nitrogen atom is the part of the ring, nitrogen atom is the part of the ring, so it is a heterocyclic amine। आप इसकी नंबरिंग करें तो कैसे करेंगे, नाइट्रोजन एटम को नंबर 1 देंगे, फिर आप 2, फिर 3, 4 एंड 5, तो इस टाइप से आप इसकी नंबरिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन को हमने हटा के बोलो क्या लगाया, ऑक्सीजन अगर हम लगा दें, ये कोई हमारा एमीन नहीं है, क्योंकि हेयर द नाइट्रोजन एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सो इट इज नॉट एमीन, ये कोई एमीन नहीं है। लेकिन हमने साथ के साथ बता दिया क्योंकि आगे आने वाले कुछ चैप्टर के अंदर इसको यूज किया जाता है, हेटेरोसाइक्लिक वाले कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर। फ्यूरान है इसका नाम, बोलो क्या बोलते हैं इसे, फ्यूरान।
इसके अंदर भी सेम वही बात होगी, व्हाई इट इज एरोमेटिक, जैसे मैंने नाइट्रोजन के बारे में आपको समझाया, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन, तो इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे मैंने आपके नाइट्रोजन की देखो इन्वॉल्वमेंट ऐसे शो की थी, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व तो टोटल कितने हो गए थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कौन से हो गए थे, ये डबल बॉन्ड वाले, और 2 लोन पेयर हो गए, जिसकी वजह से इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन हो गई, और प्लस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गए, तो इसलिए ये एरोमेटिक हो गया। सिमिलरली फ्यूरान इज आल्सो एरोमेटिक। कई बार स्टूडेंट ये पजल हो जाते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर हैं, तो 2-2 इन्वॉल्व कर लेगा, इन्वॉल्व ये उतने ही करेगा जितनी इसको आवश्यकता है, इसलिए ऑक्सीजन सिर्फ एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट ही शो करेगा कंजुगेशन के लिए, एक लोन पेयर इसका बचा रहेगा, तो इसलिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और साइक्लिक कंजुगेशन भी, तो ये भी एरोमेटिक होगा। एमीन है, नंबरिंग उसी टाइप से 1 2 3 4 5 हो जाएगी। अगर हम ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दें तो थायोफीन कहते हैं, थायो वर्ड इज यूज्ड फॉर सल्फर, तो इसका नाम है थायोफीन, तो इसके अंदर भी वही सेम नंबरिंग आप कर सकते हैं। ये भी अमीन नहीं है, 1 2 3 4 5, तो 2 स्ट्रक्चर हमने साथ में आपको वैसे ही बता दी ताकि आप इनको भी याद रख पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला एग्जांपल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड, वन इज द पायरोल, जो हमारा पहली स्ट्रक्चर थी, और दूसरी स्ट्रक्चर कौन होगी, बेंजीन रिंग। कहाँ के थ्रू अटैचमेंट किया आप ध्यान दें, जो हमारा पायरोल है उसमें पोजीशन नंबर जो 2 और 3 है, उस 2 3 पोजीशन के थ्रू हमने किसको अटैच कर दिया, बेंजीन रिंग को, या 2 3 आर इक्वलेंट टू 4 5, तो आप 4 5 भी बोल सकते हैं, तो कोई उसमें यानी डिफरेंस नहीं रहेगा बोलने में। तो मींस इफ द बेंजीन रिंग इज अटैच्ड either through 2 3 position or the 4 5 position of the pyrrole, then the structure thus formed is the indole, आप उसे इंडोल कहते हैं। तो ये इंडोल है, ये भी एमीन है, और ये साइक्लिक एमीन है, बिकॉज हियर द नाइट्रोजन एटम इज द पार्ट ऑफ द रिंग। इसकी नंबरिंग भी करें तो देखो आप उसी टाइप से 1 2 3, उसके बाद जो ब्रिज कार्बन एटम होते हैं, यानी 2 रिंग को जो अटैच करने वाले कार्बन या ब्रिज कार्बन एटम कहते हैं। देखो ये मैंने अभी लिखा सी, और देखो जो सी लिख दिया, दीज आर द ब्रिज कार्बन एटम, इनको नंबरिंग सबसे लास्ट में की जाती है। तो 3 के बाद नेक्स्ट कार्बन की तरफ चला 4 5 6 और 7, अब ब्रिज कार्बन एटम की नंबरिंग अब आएगी ये 8 और ये 9। सो दैट इज अ रूल, या एपेक रूलिंग के अंदर आता है कि ब्रिज कार्बन एटम की नेमिंग कैसे की जाएगी। तो ये आपका इंडोल हो गया उस टाइप से। नेक्स्ट ये pyridine हो गया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द pyridine। इसमें नंबरिंग हेटेरो एटम को नंबर 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट हम लेते हैं क्यूनोलिन। जैसे हमने इंडोल के बारे में सीखा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पायरोल इन द बेंजीन। सिमिलरली द क्यूनोलिन इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 पार्ट, दैट इज द pyridine पार्ट एंड द बेंजीन पार्ट। कैसे जुड़ा, अगर जो pyridine है उसमें उसकी 2 3 या 5 6 पोजीशन के थ्रू बेंजीन रिंग अटैच कर दें, 2 3 और 5 6 आर इक्विवेलेंट इन द pyridine, तो इसलिए अगर हम बेंजीन रिंग अटैच कर देते हैं तो क्यूनोलिन कहलाता है। बोलो कौन कहलाता है वो आपका, क्यूनोलिन। तो इसमें भी नंबरिंग करें उसी टाइप से 1 2 3 4। ब्रिज कार्बन एटम की नंबरिंग सबसे लास्ट में होगी। ब्रिज कार्बन एटम कौन से होते हैं, जो 2 रिंग को आपस में जोड़ते हैं, जो कॉमन कार्बन एटम है, द कॉमन कार्बन एटम इन बिटवीन द 2 रिंग्स आर द ब्रिज कार्बन, वो आपके ब्रिज कार्बन कहलाते हैं। उनकी नंबरिंग सबसे लास्ट में 5 6 7 8 और 9 और देखो 10, ये ब्रिज को हमने नंबरिंग की। उसके बाद आइसोक्विनोलिन लेंगे हम। आइसोक्विनोलिन में भी हमने अटैचमेंट की, लेकिन 2 3 के थ्रू नहीं, 3 4 के थ्रू। अगर देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भी हमने एक तो pyridine रिंग है और दूसरा बेंजीन रिंग अटैच किया है। कैसे अटैच किया है, देखो अगर हम इसको ये नंबर 1 2 3 4 अगर हम करते हैं तो कैसे अटैच किया, देखो इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, देखो ऐसे मान लो इसको 4 कह दें, सिंपल। अगर नाइट्रोजन के बेसिस पे देखें, जैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो देखो ये बेंजीन रिंग कहाँ पे अटैच हुआ है, ये जो हमारा इधर वाला देखो ये पार्ट था इतना, ये जो pyridine पार्ट था हमारा, इसमें 3 और 4 के ऊपर देखो इधर बेंजीन रिंग आया, मीन्स यहाँ पे अटैच कर दें। pyridine में देखें, देखो यहाँ पे अटैच कर दें, यहाँ पे अगर हम बेंजीन रिंग अटैच करते हैं, यहाँ पे देखो इस टाइप से, तो इस टाइप से, जैसे मैंने अभी आपको अटैच करते हुए देखो वहां पे दिखाया है, वो जो स्ट्रक्चर वहां पे बन चुकी है अभी जो मैंने बनाई है आपके pyridine के ऊपर, दैट इज द आइसोक्विनोलिन। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि अटैचमेंट कहाँ से हुई, तो जो pyridine के अंदर जब बेंजीन रिंग की अटैचमेंट हम शो करें, मींस क्यूनोलिन कैसे बना था, क्यूनोलिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कंपाउंड, दैट इज द pyridine और द बेंजीन रिंग। pyridine के कौन से पार्ट पे जोड़ा था हमने, 2 3 या 5 6 के थ्रू अगर बेंजीन रिंग को हम अटैच करते हैं तो आपका क्यूनोलिन था। लेकिन आइसोक्यूनोलिन बनाए तो कैसे, देखो हमने सेम नंबरिंग की pyridine वाली, जैसे 1 2 3, नाइट्रोजन pyridine में हमने नाइट्रोजन को 1 दी थी, वहां पे भी देखो 1 2 3 4, ताकि आपको समझ में आ जाए अटैचमेंट कैसे हुई है। तो देखो वहां पे 3 4 के ऊपर अटैचमेंट दिख रही है आइसोक्यूनोलिन में बेंजीन रिंग की, तो यहाँ पे मैंने वो करके आपको दिखाई। तो ये तो अटैचमेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग की है हमने, 1 2 3 4 देखो यहाँ पे जो हमने करके दिखाई थी अभी। तो आप समझ गए होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, क्यूनोलिन कैसे बना, pyridine के ऊपर अटैचमेंट बेंजीन की कहाँ पे हुई, कैसे हुई, कोई पूछ ले, 2 3 या 5 6 इज द आंसर। आइसोक्विनोलिन की कैसे हुई,
pyridine के ऊपर 3,4 के थ्रू बेंजीन रिंग के अटैचमेंट, तो आपका आइसोक्विनोलिन आ जाता है। लेकिन जब नंबरिंग की बात आती है, यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे तो कैसे करें, वही जैसे क्विनोलिन में किया था, वहां पे नाइट्रोजन से थी, यहाँ पे नाइट्रोजन है नहीं तो कार्बन से कर देंगे। 1 2 3 4 ब्रिज कार्बन एटम की सबसे लास्ट में, 5 6 7 8 और फिर ये 9 और ये 10। तो इस टाइप से आप नंबरिंग करते हैं आइसोक्विनोलिन के अंदर भी। अब हम इन सभी के बारे में देखेंगे कि कौन आपका प्राइमरी अमीन है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी अमीन है। हमने आपको पहले ही बताया था प्राइमरी अमीन कौन होता है। अगर नाइट्रोजन, हमने ये तो आपको पहले बता ही दिया कि ऑल एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, सारे अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। तो अगर हम जो नाइट्रोजन है उसके जो ऊपर जो H होते हैं, अमोनिया के अंदर 3 H होते हैं, तो वो H हटा के हमें क्या लगाना, वहां पे कोई भी ग्रुप लगाना है, एल्काइल ग्रुप, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग बनाना है, और उस दौरान आपके नाइट्रोजन एटम मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द रिंग। अब इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है नाइट्रोजन एटम इज द पार्ट ऑफ द रिंग। नाइट्रोजन एटम क्या है, पार्ट ऑफ रिंग है। तो हमें बड़े ध्यान से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी, सेकेंडरी और द टर्शियरी अमीन। लेकिन उससे पहले ये तो देखो हमने आपको बता ही दिया, ऑल आर द हेटेरोसाइक्लिक अमीन, सारे के सारे हेटेरोसाइक्लिक अमीन है। इनमें से कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी और कोई टर्शियरी या कोई क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो देखेंगे है भी या नहीं, वो तो आप देख पाएंगे आगे। अगर हम नीचे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, pyridine की जो स्ट्रक्चर होती है, pyridine की जो कैसी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजनेटेड। हाइड्रोजनेटेड मीन सारे डबल बॉन्ड हटा के हर जगह पे आप हाइड्रोजन अटैच कर दें तो हाइड्रोजनेटेड स्ट्रक्चर हो जाती है। तो pyridine की हाइड्रोजनेटेड जो स्ट्रक्चर उसे पिपरिडिन कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, आप उसे पिपरिडिन। तो ये पिपरिडिन है, ये भी एक एमीन है, साइक्लिक एमीन है। पायरोल, पायरोल की जो हाइड्रोजनेटेड जो स्ट्रक्चर होती है, मींस पायरोल में जो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड वो हटा के वहां पे हम कंप्लीट वैलेंसी हाइड्रोजन से कर दें तो उसे पायरोलिडीन कहते हैं। ऐसे ही जो फ्यूरान है, फ्यूरान को भी अगर हम आपको साथ के साथ देखो बता दें, यहाँ पे वैसे ये अमीन नहीं है फ्यूरान, लेकिन फिर भी अगर हम सारे के सारे डबल बॉन्ड तोड़ के वहां पे एच लगा दे तो उसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो 4 ही तो एच जुड़ेंगे, 4 ही तो एच ऐड होंगे ना, एक डबल बॉन्ड के ऊपर 2 ही एच ऐड हो सकते हैं। तो एक डबल बॉन्ड टूटने से 2 एच जुड़ते हैं, दूसरे डबल बॉन्ड टूटने से 2 एच अटैच होते हैं, तो इसलिए 4 ही एच जुड़ेंगे, इसलिए नाम है इस कंपाउंड का टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या कहेंगे इसे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब सभी के बारे में हम देखेंगे जो जो भी अमीन है। देखो ये तो अमीन नहीं है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी लाइक दैट ऑफ द फ्यूरान, ये भी अमीन नहीं है। अब हम देखेंगे पायरोल के बारे में, कैसा अमीन है पायरोल, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से अटैच, कितनी बार कार्बन से अटैच है, कितने टाइम कार्बन से अटैच है। देखो इस कार्बन से 1 टाइम अटैच है, इस कार्बन से 1 टाइम अटैच है, तो 2 टाइम अटैच हो चुका, तो इट इज ए सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट तो अमीन है ही नहीं फ्यूरान, थाइफिन भी आपके अमीन ही। पायरोल को देख, इंडोल को देखते हैं। इंडोल में बताएं, नाइट्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच 1 टाइम अटैच, इस नाइट्रोजन से 1 टाइम अटैच, तो 2 टाइम टोटल अटैचमेंट है, सो इट इज ए सेकेंडरी अमीन। pyridine को देखें, pyridine के अंदर देखो नाइट्रोजन इस कार्बन से 1 टाइम अटैच, देखो 1 टाइम, यहाँ पे इस कार्बन से 2 टाइम अटैच, 2 बार, देखो 1 टाइम, सेकेंड टाइम 2 टाइम, और इधर 1 टाइम इधर था, टोटल 3 टाइम्स अटैच हो चुका है। सो इट इज ए टर्शियरी अमीन। बोलो क्या है ये, टर्शियरी अमीन है। नेक्स्ट आइसोक्विनोलिन में बताएं, यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन इधर इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से 1 टाइम अटैच है, लेकिन इस कार्बन से 2 टाइम अटैच है, 2 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, 2 बॉन्ड से अटैच है, तो 2 टाइम अटैचमेंट। टोटल कितने टाइम अटैचमेंट होगी, इधर 2 टाइम्स, इधर तो 2 बार, इधर 1 बार, 2 + 1 3 टाइम्स, तो मिस इट इज ए टर्शियरी अमीन। बोलो कौन हो गया ये एक टर्शियरी अमीन है। नेक्स्ट देख ले आइसोक्विनोल, ये भी ऐसे ही, ये नाइट्रोजन 3 वाले कार्बन से देखो अटैच है, 1 टाइम ही, लेकिन यहाँ पे 1 वाले से जो अटैच है, देखो सी मैंने दिखाया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 टाइम अटैच है, 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम इधर और 1 टाइम उधर, 2 + 1 3 टाइम्स, तो दैट इज द टर्शियरी अमीन। बोलो कैसा हो गया ये भी टर्शियरी अमीन। पायरोलिडीन को देखते हैं, नाइट्रोजन इधर कार्बन से 1 टाइम अटैच, इस कार्बन से भी 1 टाइम अटैच, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट पिपरिडीन को देखें, यहाँ पे भी नाइट्रोजन इस कार्बन से 1 टाइम अटैच, इस कार्बन से 1 टाइम अटैच, टोटल 2 टाइम अटैच, सो इट इज द पिपरिडीन, इट इज ए सेकेंडरी अमीन। तो ये भी बोलो क्या हो गया आपका सेकेंडरी अमीन। तो ये आपकी प्रैक्टिस हुई, इस टाइप से आप किसी भी कंपाउंड को बड़ी आराम से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो आपका प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी है या टर्शरी अमीन है। So thank you, that all about the amines nomenclature, their classification. Thank you.